بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا علیم یا علیم یا علیم. حبیبہ نہیں نظر آئی؟ حبیبہ کہاں ہے؟ اچھا باقی کلاس پیچھے سب آ گئے؟ ہاں مریم اور حبیبہ ٹھیک ہے جی. ہمارا حضرت الیاس علیہ السلام حیات ہے یا نہیں؟ آ جائیں جلدی آ جائیں. مورخین میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے، حضرت الیاس زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں. اس میں یہ مذکور ہے، علامہ بغوی نے تفسیر مظہری میں یہ طویل روایت بیان کی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشین گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا. حضرت الیاس کو اٹھا لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے. حضرت کعب احبار سے منقول ہے 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں. 2 زمین میں حضرت خضر اور حضرت الیاس، 2 آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام. در منصور نے اس کو روایت کیا ہے. یہاں تک کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں. لیکن حافظ ابن کثیر جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک زیر بحث ہے، اس کا پورا ٹاپک آپ یہ تیار کر لیجئے گا. حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ اس میں سکوت خاموشی اختیار کی جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے، نہ ان کی تکذیب کرو نہ ان کی تصدیق کرو. پھر اس کے بعد اتذرونا، کیا تم چھوڑتے ہو بال کو؟ بال کی لغوی معنی شوہر اور مالک کے ہیں، لیکن یہ اس بت کا نام ہے جسے حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا. بال کی پرستش کی تاریخ بہت قدیم ہے. شام کے علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کی پرستش ہوتی تھی، اور یہ اس کا سب سے زیادہ مقبول کیا ہو گیا؟ اور یہ ان کا سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا. شام کا مشہور شہر بالا بکہ بھی اسی کے نام سے موسوم ہوا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے اہل حجاز کا مشہور بت حبل بھی یعنی بال ہے. حبل بھی بال ہی اہل حجاز کا مشہور، یعنی بہت ساری قوموں نے بال کی. ٹھیک ہے، اس کو سارا دیکھ لیجئے گا کہ سب سے پہلے شام، پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا، اور پھر تیسرا جو ہے اہل حجاز کا بھی. جی اچھا جی. سلام علی الیاسین، الیاسین کا میں نے آپ کو بتایا تھا. الیاسین بھی الیاس علیہ السلام کا ہی نام ہے. آپ دیکھیے گا اس کا والیوم ہلکا ہو گیا میرے، یہ والا دوسرا والا فل ہے. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. الیاسین بھی الیاس علیہ السلام کا پورا کھول دیں آپ، پورا کھلا ہوا ہے. بس آپ ایک دفعہ پورا کھول دیں نا اس کو، بس 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 بند کر دیے کھولا ہے، بس پورا کھول دیں، بس ختم کرو اس کو. پتہ نہیں وہ ہلکا کر کے چلی گئی جاتے جاتے. پورا کھلا ہوا ہے، اب آگے نہیں ہو سکتا اور زیادہ. آپ اس طرف نہیں، اس طرف پورا فل کر دو. دادی آپ کر دیں، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. بس ختم کرے گا. الیاسین بھی الیاس علیہ السلام کا ایک نام ہے. اہل عرب اکثر، یہ یاد رکھیے گا یہ قول، اہل عرب اکثر
अजमी नामों के साथ या और नून बढ़ा देते हैं। अहले अरब अक्सर अजमी नामों के साथ या और नून बढ़ा देते हैं। जैसे सीना है, तूरे सीना है, उसको सीनीन, इस तरह यहाँ भी दोहर बढ़ा दिए। याद है मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। वह इन्ना, और बेशक, लूत अलैहिस्सलाम, ये कौन सा किस्सा शुरू हो रहा है? हाँ, पांचवा किस्सा, ठीक है ना। कौन सा था चौथा वाला? हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का। और बेशक लूत अलैहिस्सलाम लमिनल मुरसलीन, पैगंबरों में से है। इस जब नज्जयनाहु, हमने उनको निजात दी, और उनके घर वालों के सब को निजात दी। इल्ला, सिवाय अजूजन, एक बुढ़िया, फिल गाबिरीन, जो पीछे रह जाने वालों में से थी। सुम्मा, फिर दमरना, हमने बर्बाद कर दिया, आखरीन, दूसरों को। व इन्नकुम, और बेशक तुम, लतमुर्रूना, तुम गुजरते हो, अलैहिम, उन पर, मुस्बिहीन, सुबह के वक्त भी, व बिल्लैली, और रात में भी। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? यही ना आयात में पांचवा किस्सा हजरत लूत अलैहिस्सलाम का है। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई थी। इनकी कौम का बड़ा कबी अमल था, वो भी आपको मालूम है। और यहाँ पर अहले मक्का को तंबीह की गई है, तुम शाम के तिजारती सफर में सुदूम से इस इलाके से दिन रात गुजरते हो, जहाँ ये इबरतनाक वाकया डेड सी है, ये वाकया पेश आया, लेकिन इससे कोई इबरत हासिल नहीं करते। सुबह शाम का जिक्र खास तौर पर इसलिए फरमाया कि अहले अरब उमूमन इन्हीं इलाकों से यहाँ होकर यहाँ पर गुजरा करते थे। वह इन्ना, और बेशक, अब हमारा सातवां, छठा छठा हो गया, सातवां हो गया, छठा। और बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम लमिनल मुरसलीन, अलबत्ता पैगंबरों में से है। इस जब अबाखा, वो नबी के लिए क्या बोलेंगे लफ्ज अबाखा, छोड़ के चले गए थे। भाग गए तो लफ्ज नहीं समझ आ रहा। क्या लिखेंगे नबी के लिए ना? और बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम लमिनल मुरसलीन, पैगंबरों में से है। इस अबाखा, हाँ हाँ, चले गए भी कह सकते हैं, भाग गए का लफ्ज तो समझ नहीं आ रहा। इस अबाखा, जब छोड़कर चले गए थे, इलल फुल की, किश्ती में, मशहून, भरी हुई किश्ती में छोड़कर चले गए थे। फसाहमा, पस उन्होंने कुर्रा डाला। पकाना, पस वो थे, मिनल मुदहजीन, पस वो थे किसमें से? मिनल मुदहसीन, खताकारों में से थे। आ, या मुदहजीन का है, क्या हो गया, क्योंकि असल में नबी के बारे में ना ये सारे, बस वो नदामत वालों में से हो गए। बस जब उन्होंने खुरा डाला तो फिर वो नदामत वालों में से हो गए। और फिर उसके बाद नदामत वाले कह लें, या इन्होंने यहाँ कतावार लिखा हुआ है, कताकार, जी, वैसे इसका मतलब है कि खताकार। फल तकमाहू, बस निगल लिया उनको। क्योंकि नबी के बारे में है तो अल्फाज आम इंसानों वाले इस्तेमाल नहीं होते, ये उस्लूब है कुरान का भी, और ये तरीका भी है। फल तकमाहू, बस निगल लिया उनको, हूतू, मछली ने, वहुआ मुलीम, और वो मलामत किए हुए थे। फलौला, पस अगर ना, अन्नहु, बेशक वो, काना, वो होते, मिनल मुसब्बिहीन, तस्बीह करने वालों में से, अगर वो ना होते, ललबेसा, अलबत्ता वो ठहरते, फी बतनी ही, उस मछली के पेट में, इला यौम युबअसून, उठाए जाने के दिन तक, यानी कि वो मछली के पेट ही उनकी खबर बन जाती। फनबज़नाहु, बस हमने उनको डाल दिया, बिल अराई, मैदान में, वहुवा सकीम, और वो सख्त बीमार थे। वो अम्बतना, और हमने उगाई, अलैहि, उनके ऊपर, शजरतन, एक दरख्त, मिन यख्तीन, जो बेल वाला था। अक्सर लोगों ने कद्दू का ही कहा है। वो अरसलनाहु, और हमने उनको भेजा था जब वो बिल्कुल दुरुस्त हो गए थे। इला में अतिन अल्फिन, औ यजीदून, इला में अति अल्फिन, अल्फिन कहते हैं हजार, मिया कहते हैं 100,
100 और 1000 को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या किया जाता है? 1 लाख। 1 लाख औ यजीदून या उससे जायद लोगों पर इनको हमने भेजा था। फ़आमनू बस वो ईमान लाए, वो सारे 1 लाख लोग ईमान लाए। पहले एक भी ईमान नहीं लाया, अब 1 लाख लोग ईमान लाए। फमतअनाहुम हमने उनको फायदा दिया, इलाहीन एक मुद्दत तक। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उनके बारे में कि मुफस्सिरीन और मौर्रिखीन की बहस, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के वाक़े से पहले ही रसूल बनाए गए थे, ये बाद में। बास हजरत का ख्याल है मछली के वाक़े के बाद उन्हें रसूल बनाया गया, लेकिन कुरान का उस्लूब और रिवायात से यही राजे है कि पहले ही मनसब रिसालत पर फाइज थे, मछली का वाक़या बाद में आया। इस अबका इबाकुन से निकला है, जिसके माना है किसी गुलाम का अपने आका के पास से भाग जाना। ये लफ्ज अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए इस वजह से इस्तेमाल फरमाया कि वो अपने परवरदिगार की तरफ से वही का इंतजार किए बगैर ही रवाना हो गए थे, भाग गए नहीं थे, रवाना। मैंने कहा था ना, एक लफ्ज ऐसा मिलना चाहिए जो रवाना, रवाना हो गए थे। अंबिया अलैहिस्सलाम के अल्लाह अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे होते हैं, उनकी मामूली सी लफ्जिश भी बड़ी गिरफ्त का सबब बन जाती है, इसलिए ये सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया, बड़ा सख्त लफ्ज है। तो ये इस अबका जब रवाना हुए, ठीक है, ये लफ्ज लिख ले, इस अबका नऊजुबिल्ला भागने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने ये कुरानदाजी उस वक्त की जाती है जब किश्ती बीच दरिया के पहुंच कर तूफान में गिर जाए और वजन की ज्यादती से उसके डूबने का अंदेशा हो, और तय ये पाया कि एक शख्स को दरिया में फेंक दिया जाएगा। खुरा ये मुतय्यन करने के लिए डाला गया ये शख्स कौन हो, खुरा डालने का हुक्म। यहाँ ये याद रखना चाहिए, कुरानदाजी के जरिए ना किसी का हक साबित किया जा सकता है, ना किसी को मुजरिम करार दिया जा सकता है। मसलन खुरा के जरिए किसी को चोर साबित नहीं किया जा सकता। इस तरह तो आदमी में इख्तिलाफ हो, जायदाद किसकी है, इस तरह भी कुरानदाजी करना जायज नहीं है। जहां एक शख्स को शरन मुकम्मल इख्तियार हासिल हो, वो चंद जायज रास्तों में से किसी को भी रास्ते को इख्तियार कर ले। जहां पर किसी शख्स को सारे ही रास्ते हैं और उसमें से चंद जायज रास्तों में से किसी एक रास्ते को इख्तियार करने के लिए, जायज चीजों में इख्तियार करने के लिए एक में कुरानदाजी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, सफर में जाते हुए अपनी मर्जी के बजाय खुरा डालते थे ताकि किसी की दिल शिकनी ना हो, और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी कुरानदाजी से किसी को मुजरिम साबित करना मकसूद नहीं, बल्कि पूरी किश्ती को बचाने के लिए किसी को भी दरिया में डाला जा सकता था, खुरा उसके जरिए, खुरा के जरिए इसकी तायुन किया गया। फकाना पस होते मिनल मुदहजीन, इदहाजुन के लुग़वी माना किसी को नाकाम बना देना। मतलब ये है कुरानदाजी में उन्हीं का नाम निकल आया और उन्होंने अपने आप को दरिया में डाल दिया। इस पर खुदकुशी का शुबा ना होना चाहिए, इसलिए कि हो सकता है किनारा करीब हो और वो तैराकी के जरिए वहां तक पहुंचने का इरादा रखते हो। फकाना पस होते मिनल मुदहजीन, मगलूब हो गए थे, ठीक है ना। मुदहजीन का पता चल गया, इदहाज आपको जो थे, किसी को नाकाम बना देना, बस वो नाकाम होने वालों में से थे। बस कुरा डाला, फकाना पस होते मिनल मुदहजीन, नाकाम होने वालों में से। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्बीह है, जिन्होंने मछली के पेट में थी, वो खास कलमात थे, और इसके बारे में आता है कि मुसीबत के वक्त ये कलमा 1.25 मरतबा पढ़ना बुजुर्गों से मनकूल है, इसकी बरकत से मुसीबत दूर हो जाती है। अल अरा के माना है खुला मैदान जिसमें कोई दरख्त ना हो। बाज रिवायात से मालूम होता है जब तक यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहने की वजह से इंतहाई कमजोर हो गए थे, जिससे पर बाल भी बाकी नहीं रहे थे। यकीन हर उस दरख्त को कहते हैं जिसका तना ना हो, यानी बेल वाला हो। रिवायात में यह है कि कद्दू की बेल थी। इस दरख्त को उगाने की मंशा ये थी कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साया हासिल हो,
यहाँ शजरतन का लफ्ज बता रहा है, या तो इसी कद्दू की बेल को अल्लाह ने बतौर मौजज़ा तनादार बना दिया था, या कोई और दरख्त था जिस पर बेल चढ़ा दी थी ताकि इससे घना साया मिल सके, वरना बेल से साया मिलना मुश्किल है। और फिर ये 1 लाख लोगों की तरफ गए थे। जो अल्लाह ताला ने कहा 1 लाख या उससे ज्यादा, ये जुमला आम लोगों की मुनासबत से क्या कहा गया है, यानी एक आम आदमी उन्हें देखता ये कहता कि इनकी तादाद 1 लाख या इससे कुछ ऊपर है। तफसीर मजरी हजरत थानवी ने फरमाया, यहाँ शक का इजहार मकसूद नहीं, उन्हें 1 लाख ही कहा जा सकता है या उससे ज्यादा भी। और वो इस तरह के अगर कसर का लिहाज ना किया जाए तो इनकी तादाद 1 लाख थी, अगर कसर को भी शुमार किया जाए तो 1 लाख से ज्यादा थी। कसर का मतलब कहते हैं किसी चीज को तोड़ देना, कम कर देना। ये जुमला चूंकि मछली के वाक़े के बाद आया, इसलिए बाद मुफस्सिरीन ने ये नतीजा निकाला, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बासत उस वाक़े के बाद हुई। नैनवा की तरफ मबूस हुए थे, उसका ज़िक्र नहीं है, ये सारा। यहाँ पर मिर्ज़ा की जो उन्होंने एक तबलीग का जवाब दिया है, मिर्ज़ा कादियानी की, जो झूठा था, पंजाब के झूठे नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की इस तबलीग का खात्मा हो जाता है जब उसने अपने मुखालिफों को यह चैलेंज किया, अगर वो भी इसी तरह मुखालफत करते रहे तो खुदा का फैसला हो चुका है, फला वक्त तक अजाब इलाही आ जाएगा। लेकिन मुखालिफिन की जद्दोजहद और तेज हो गई, फिर भी अजाब ना ही आया। तब नाकामी की जिल्लत से बचने के लिए कादियानी ने यह कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुखालिफिन दिल में डर गए हैं, इसलिए उन पर से अजाब टल गया, जिससे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर से टल गया था। लेकिन कुरान की ये आयत इसकी तावील को बिल्कुल बातिल करार देती है, इसलिए कि कौम यूनुस तो ईमान की वजह से अजाब से बची थी। इसके बरअक्स मिर्जा कादियानी के मुखालिफिन ना सिर्फ ये कि ईमान नहीं लाए, बल्कि उनकी मुखालिफाना जद वो मिर्जा पर ईमान नहीं लाए थे, बल्कि उनकी मुखालिफाना जद्दोजहद और ज्यादा तेज हो गई थी। फस्तफ्तिहिम, बस आप इनसे पूछिए, अले रब्बे का, क्या तुम्हारे रब के लिए बना तू बेटियां हैं, वलहुम, और उनके लिए बनून बेटे हैं। आप इनसे पूछ लीजिए, क्या तुम्हारे रब के लिए बेटियां हैं, फरिश्तियां हैं, और उनके लिए बेटे हैं, जो है मक्का वाले अपने लिए बेटे चाहते हैं। हम क्या खलकना, हमने पैदा किया, मलाइका फरिश्तों को, इनासन, हमने फरिश्तों को औरतें बनाया है, वहुम शाहिदून, जब फरिश्तों को हम औरतें बना रहे थे, वहुम शाहिदून, वो वहां मौजूद थे, देख रहे थे। अला, याद रखो, इन्नहु, बेशक वो, फी इफ्किहिम, अपने गढ़े हुए में, अपने झूठों में, लयकून कह रहे हैं, वलद अल्लाह, अल्लाह की औलाद करार दे रहे हैं। व इन्नहुम, और बेशक वो, लकाजिबुन, वो झूठे हैं। अस्तफा, क्या चुन लिया है, बना तू बेटियों को, अलल बनीन, बेटों के मुकाबलों में, मा लकुम, कैसा है, कैफा तहकुमून, कैसा तुम फैसला करते हो, अफला तजक्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते, अम, क्या लकुम, तुम्हारे लिए, सुल्तान मुबीन, कोई खुली दलील है, फातू, ले आओ, बेकिताबिकुम, अपनी उस दलील को, उस लिखे हुए को, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। वजालू, और उन्होंने बना लिया, बैनहू, अल्लाह के दरमियान, व बैनल जिन्नती, और जिन के दरमियान, नसबन, रिश्तेदारी बना दी। कहने लगे अल्लाह ने जिन से शादी कर ली, नऊजुबिल्ला, रिश्तेदारी उन्होंने बना दी। वलखत, और अलबत्ता यकीनन, अलिमत, जान लिया है, जिन्नतु, जिन्होंने भी ये बात जान ली है, इन्नहुम, बेशक वो, मुहजरून, कयामत के दिन गिरफ्तार करके लाए जाएंगे। सुबहान अल्लाह ही, अल्लाह पाक है, अम्मा उससे यसिफु, जो ये बयान करते हैं, इल्ला, सिवाय इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदे, मुखलसीन, जो खालिस है। फ़इन्नकुम, बस बेशक तुम, वमा, और जिसकी ताबुदू, तुम इबादत करते हो, माँ नहीं, तुम अलई, उस पर, बेफातिनीन, वमा, और नहीं, तुम
बिफातिनीन, तुम उसको बहका कर नहीं ले सकते। अल्लाह की जात पाक है जो ये बयान करते हैं सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदे। और फ़इन्नकुम, बस बेशक तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो, माँ नहीं तुम अलैहि उस पर बेफातिनीन, तुम उसको बहका कर नहीं ले सकते। इल्ला सिवाय मन जो हुआ वो सौलिल जहीम, वो दाखिल होगा जहन्नुम में। वमा, और नहीं, मिन्ना हमारे लिए, इल्ला मगर, लहू उसके लिए, मकामुन मकाम है, मालूम मुकर्रर मकाम है। कट गया है तो मसला हो गया है। हाँ, अच्छा अच्छा। ये इसको निकाल के दोबारा लगाते मुझे मुसलसल पकड़ के रखना पड़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा, और नहीं, मिन्ना हमारे लिए, इल्ला मगर, लहू उसके लिए, मकाम मालूम मुकर्रर मालूम है। फरिश्ते कहने लगे हैं नहीं है हमारे लिए मगर हमारे लिए मकाम मालूम है। व इन्ना, और बेशक हम, लनाहनु अलबत्ता हम, सौफून हम फरिश्ते तो सफ बनाने वाले हैं। व इन्ना, और बेशक हम, लनाहनु अलबत्ता हम, मुसब्बिहून हम फरिश्ते तो ऐसे हैं, हमारे लिए एक मुकर्रर मकाम अल्लाह ने बनाया हुआ है, और हम तो सफ बनाने वाले हैं। और हम तो अपने रब की तस्बीह बयान करने वाले हैं। ठीक है, अल्लाह ताला का यहाँ से है, फस्तफ्तिहिम, आप इनसे पूछ लीजिए, इन कुफारे मक्का से, इस अकीदे की तरदीद कि क्या तुम लोगों के लिए तो बेटियां हैं, तुम लोगों के लिए तो बेटे हैं, और अल्लाह के लिए बाइस फखर बेटियों का वजूद है। कैसी बातें हैं, और तुम ये कैसे कहते हो कि अल्लाह ने फरिश्तों को बेटियां बनाया है? तुम्हारे पास क्या दलील है जिससे तुम इसको साबित कर सको? तीन किस्म के दलाइल हो सकते हैं, एक मुशाहिदा, दूसरी नकली दलील, यानी कोई ऐसी जात का कौल जिससे सच्चाई मुसल्लम हो, तीसरी अकली दलील, जिस जहां तक मुशाहिदे का ताल्लुक है, जाहिर है कि तुमने अल्लाह ताला को फरिश्तों की तख्लीक करते हुए देखा नहीं है जिससे फरिश्तों का मोनिस होना साबित हो सकता हो, लिहाजा मुशाहिदे की कोई दलील तुम्हारे पास है नहीं। रही नकली दलील, तो वो भी तुम्हारे पास नहीं, किसी का कौल ऐसा नहीं जिसकी सच्चाई मुसल्लम हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। तुम्हारे अकीदे ये सारे झूठे हैं, कोई हुज्जत नहीं है। अला, याद रखो, इन्नहुम, बेशक हो, मिन इफ्किहिम, अपने गढ़े हुए से ही, लयकुलून, अलबत्ता झूठ बोल रहे हैं। अकली दलील सो वो भी तुम्हारी तायीद नहीं करती, खुद तुम्हारे ख्याल के मुताबिक बेटियां बेटों के मुकाबले में कम रुतबा रखती हैं। अब जो जात तमाम कायनात से वो अफजल है, वो अपने लिए कम रुतबे वाली चीज को कैसे पसंद कर सकती है? अब हठधर्मी करने वालों के लिए इल्जामी जवाब देना मुनासिब है कि तुम तो खुद बेटियों को नापसंद करते हो, तुम्हें उनका वजूद जो है बहुत गिरा गुजरता है, और फरिश्तों को खुदा की बेटियों के बजाय खुदा के बेटे कहते तो ये दुरुस्त होता। और फिर उसके बाद इन्होंने जो कहा कि इन्होंने अल्लाह और जिन्नात के दरमियान नसब करार दे दिया। मुशरिकीन मक्का के उस फासिद अकीदे का बयान है कि जिन्नात के सरदार जादियां फरिश्तों की माएँ हैं, यानी कि अल्लाह, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, गोया माजल्ला, अल्लाह जिन्नात की, जो इनकी जो सरदार जातियों से अल्लाह ताला का ज़ौजियत का ताल्लुक है, और इसके नतीजे में फरिश्ते वजूद में आए, नौजुबिल्ला। जब मुशरिकीन अरब ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे दिया तो हजरत अबू बकर ने पूछा इनकी माँ कौन, तो उन्होंने कहा जिन्नात की सरदार जादिया, नौजुबिल्ला। और जिन्नात को ये खुद मालूम है कि वो कयामत के दिन हाजिर करके गिरफ्तार करके लाए जाएंगे। ये सारा बता,
یہ سارے ان کے باطل عقائد جو ہے میں نے آپ کو اس کو ساتھ ساتھ بتا بھی دیا. وہ ان اور یہ کہ کانو وہ تھے لیقولون، آیت نمبر 167. اور یہ کانو وہ تھے لیقولون، یہ وہ کہا کرتے تھے، لو اگر ان بے شک اندنا ہمارے پاس ہوتے، ذکرن ہمارے پاس نصیحت ہوتی، من الاولین پہلے لوگوں کی طرح، لکنہ البتہ ہم بھی ہو جاتے، عباد اللہ اللہ کے بندے، مخلصین خالص چنے ہوئے. فکفروا پس انہوں نے کفر کیا بھی اس کا، فسوف پسند قریب یعلمون وہ جان لیں گے، ولقد اور البتہ یقیناً سبقت طے شدہ ہو چکی ہے، کلمتنا بات ہماری بات، لعبادنا ہمارے بندوں کے بارے میں، مرسلین جو ہمارے رسول ہیں بھیجے ہوئے ہیں، انہم بے شک یہ جو رسول ہے، لہم ان کی منصورون ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ بے شک جندنا جو ہمارا لشکر ہے، اللہ فرما رہے لہم الغالبون انہوں نے ہی غالب آنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اور یہ تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نصیحت ہوتی، کافر کہتے تھے پہلے لوگوں کی طرح تو ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے ہو جاتے. بس انہوں نے کافروں نے انکار کر دیا، بس عنقریب یہ اپنے انکار کا انجام جان لیں گے. اور پہلے سے بات طے شدہ ہے ہمارے بندوں کے بارے میں جو ہمارے رسول ہیں، کہ ان رسولوں کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارے رسول جو ہمارا لشکر ہے، لہم الغالبون یہی غالب آئیں گے. فتولا پس منہ موڑیے عنہم ان سے، حتی ہین ایک مدت تک، وہ ابصر اور ان کو دیکھتے رہیے، فسوف پسند قریب یبصرون وہ بھی دیکھ لیں گے. افا بعذابنا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے، یستعجلون جلدی جلدی مانگ رہے ہیں، اس کو جلدی طلب کر رہے ہیں. فَإِذَا پس جب نزلہ وہ نازل ہوگا، بساحتہم ان کے میدانوں میں، فساء پس بری ہوگی، صباحو صبح، منذرین جس سے ڈرایا گیا. وَتَوَلَّا اور منہ موڑیے عنہم ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتی ہین ایک مدت تک، وہ ابصر ان کو دیکھتے رہیے، فسوف پسند قریب یبصرون وہ بھی دیکھ لیں گے. یہاں پر کفار کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تمنا کیا کرتے تھے اللہ کا کوئی پیغمبر آئے تو ہم بھی اس کی پیروی کریں گے. جیسے ان کا یہ لکھا ہوا ہے نا، اگر ہمارے پاس بھی نصیحت ہوتی پہلے لوگوں جیسی تو ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے بن جاتے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے صرف ضد کا ہی راستہ اختیار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی آپ ان لوگوں کی ایذا رسانیوں سے رنجیدہ نہ ہو، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے آپ غالب ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے بتا دیا آگے بھی کہ آپ ہی ہمارا لشکر ہے. اور غزوہ بدر سے لے کے فتح مکہ تک ہر جہاد میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی فتح دی اور آپ کے مخالفین ذلیل و خوار ہوئے. ہمارے خاص بندے یعنی پیغمبر غالب ہوتے ہیں، جو اللہ نے فرمایا ہمارے جو لشکر ہوتے ہیں وہی غالب ہوتے ہیں. بعض پیغمبروں کو دنیا میں غلبہ حاصل نہیں ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ اکثریت تو ایسی حضرات ہیں جن کی قومیں انہیں جھٹلا کر عذاب میں مبتلا ہوئی. ان حضرات کو عذاب سے، ان انبیاء کو عذاب سے محفوظ رکھا گیا. صرف چند انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جنہیں دنیا میں آخری وقت تک بظاہر مادی طور پر غلبہ نہ مل سکا، لیکن دلیل و حجت کے میدان میں ہمیشہ وہی سربلند رہے اور نظریاتی فتح ہمیشہ انہی کو حاصل ہوئی. ٹھیک ہے. اور نازل ہوتا بساحتہم ان کے میدانوں میں، پس بہت بری ہوتی وہ صبح جس سے ان کو ڈرایا گیا. جو ہے نا یہ والا سارا اس میں لکھا ہوا ہے. اگر نازل ہو جاتا عذاب ان کے میدانوں میں، پس بہت بری صبح ہوتی جس سے ڈرایا گیا. ساحت ان کے لفظ معنی صحن کے بھی آتے ہیں. ان کے صحن میں اترا عربی محاورہ ہے جس کا مفہوم کسی آفت کا سامنے آ جانا. صبح کے وقت کی تخصیص یہ ہے اہل عرب میں دشمن کا حملہ عموماً اسی وقت ہوا کرتا تھا
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था, अगर किसी दुश्मन के खिते में रात के वक्त पहुंचते तो हमले के लिए सुबह का इंतजार फरमाते। सुबहान अल्लाह ही, ये सूरत खत्म हो गई आज। अच्छा, सुबहान अल्लाह, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सुबहाना पाक है रब्बे का, आपके रब की जात, रब्बिल इज्जा जो इज्जत वाला रब है, अम्मा उससे, यसिफून जो ये बयान करते हैं। पाक जात है आपके रब की, वो परवरदिगार इज्जत वाला है, अम्मा उससे यसिफून जो ये बयान कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला के बेटे करार दे रहे हैं, अल्लाह उन सारी चीजों से पाक है। वो सलामुन, और यहाँ पर अंबिया को जो जिक्र आया, असल उसका पूरी सूरत का खुलासा इन 3 आयतों में आता है। वह सलामुन, और सलाम हो अलल मुरसलीन, पैगंबरों पर, वल्हम्दु, और तमाम तारीफें लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो जहानों का परवरदिगार है। इन आयात पर सूरह सौफात को खत्म किया गया है, और दर हकीकत इस हसीन खात्मे की तशरीह के लिए दफ्तर चाहिए। मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला ने 3 मुख्तसर आयतों में सूरत को, पूरी सूरत को समेट दिया है। मैंने आपको बताया ना, इन पूरी सूरत का खुलासा है। सूरत की इब्तिदा तौहीद के बयान से हुई, और फिर बहुत सारी बातें मुशरिकीन ने की, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनसे उन सबको पाक किया। चुनाचा पहली आयत में इस तवील मजमून की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला जो ये सारे मुशरिकीन अल्लाह के बारे में, जो अल्लाह ताला की तौहीद के खिलाफ बातें करते हैं, अल्लाह ताला की जात पाक है। उसके बाद सूरत में अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात बयान किए गए। चुनाचा दूसरी आयत में इसकी तरफ इशारा किया गया। उसके बाद खोल खोल कर काफिरों के अकायद और शुबहात और एतराजात सबकी अकली नकली तरदीद करके ये बता दिया गया, गलबा बिल आखिर अहले हक को होगा। और इन बातों को जो शख्स भी अक्ल बसीरत की निगाह से पढ़ेगा, बिलाखिर अल्लाह ताला की हमदो सना पर मजबूर होगा। चुनाचा इसी हमदो सना पर सूरत को इख्तिताम किया गया। जी, अल्लामा कुर्तुबी ने यहाँ अपनी सनद से हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला का ये कौल नकल किया गया है कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार सुना, आप नमाज खत्म होने के बाद ये आयत तिलावत फरमाते थे, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो शख्स चाहता है क़यामत के दिन उसे भरपूर पैमाने से अजर मिले, उसे चाहिए वो अपनी मजलिस के इख्तिताम में ये दुआ पढ़ा करे। जी, आप कहाँ तक आपकी सूरत होनी थी? आपका सिलेबस कहाँ तक होना चाहिए था? सूरह स्वात मुकम्मल होनी चाहिए थी। ठीक है, बस एक ही सूरत है ना आपकी तो। सही। साइमा बाजी पढ़ाती थी सूरह सॉफ़ात? रशीद भाई, ठीक है। जी, इंशाअल्लाह ताला फिर कल इस सूरत को शुरू करेंगे, कि अभी शुरू कर दें? 5 मिनट तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबके पास जल तो है ना? जी, आपके टेस्ट कहाँ तक हुए बच्चों? सूरह सूरह फातिर कल दिए ना? कल आज मिले टेस्ट उसका? सही है। फिर सूरह फातिर के बाद सूरह यासीन के बाद सूरह सॉफ़ात फिर बहुत लंबी है। ठीक है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौद, हुरूफ मुक़त्तआत, वल कुरान, कसम है कुरान की, ज़िक्री जो नसीहत वाला है, बल्कि अल्लज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, फी इज़्ज़तिन, इज़्ज़त यहाँ पर काफिरों की तो इज़्ज़त नहीं है, बल्कि काफिर क्या है, इज़्ज़त से मुराद उसका क्या होता है, काफिरों की गुरूर में है, व शिकाक और जिद में है। बल्कि काफिर गुरूर में है और जिद में है। कम अहलकना, कितनी हमने हलाक की, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले, मिन क़र्निन बस्तियां, फनादऊ पस उन्होंने पुकारा, वलाता और नहीं था, हीना मनास नहीं थी रिहाई की जगह।
हीना नहीं थी मनास रिहाई की, वह अजीब हूँ और उन्होंने ताज्जुब किया। ठीक है, कितनी हमने हलाक की उनसे पहले बस्तियां। फनादव, बस उन्होंने पुकारा, और जब अजाब आया उस वक्त उन्होंने पुकारा, उस वक्त उनके छुटकारे की कोई जगह नहीं थी। वह अजीब और उन्होंने ताज्जुब किया, अन ये के जाहुम, आया उनके पास, मुनजिरुन, डराने वाला, मिनुम, उन्हीं में से। उनको तो ये बात इतनी अजीब लगी कि डराने वाला आसमान से कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि उन्हीं में से कोई एक शख्स डराने वाला बन गया है। वक़ौल अल काफिरून, और कहा काफिरों ने, हाज़ा, ये साहिरुन, नऊजुबिल्ला, नबियों के बारे में, नबी के बारे में कहने लगे, साहिरुन, जादूगर है, नऊजुबिल्ला, कज्जाब, झूठे हैं। अजाला, क्या बना लिया है, आलिहतन, माबूदों को, इलाहन वाहिद, एक ही माबूद, सारे माबूदों को एक ही माबूद बना लिया है। इन बेशक हाजा, ये लशयुन, अलबत्ता चीज है, उजाब, ताज्जुब वाली, अजीब चीज है। वन तलखा, और चला गया, मलऊ सरदार, मिन, उनमें से, अन ये के, कहने लगे सरदार उनमें से, के अनिमशु, ये के चलो, वसबिरु, और जमे रहो, अला आलिहतिकुम, अपने बहुत सारे माबूदों पर जमे रहो। इन्ना, बेशक हाजा, ये लशयुन, अलबत्ता चीज है, युराद, जिसका इरादा किया गया है, ये तो अजीब चीज है। माँ समेना, हमने नहीं सुना, बेहाजा, ये फिल मिल्लतिल आखिरा, पहली मिल्लतों में हमने ये बात नहीं सुनी कि एक ही माबूद की तरफ बुलाया जाए। इन्ना, बेशक हाजा, ये इल्ला, मगर इख्तिलाक, ये तो गढ़ ली गई है। इख्तिलाक का मतलब है गढ़ना, बनाना। उनजिला, क्या नाजिल किया गया है, अलैहि, इन्हीं नबी के ऊपर, जिक्र, नसीहत इन्हीं पर नाजिल की गई है, मिन बैनिना, अल्लाह को हमारे दरमियान कोई नहीं मिला था, सिर्फ ये नबी मिले थे, इन्हीं के ऊपर नसीहत हासिल की गई है। बल्कि हम वो फी शक शक में है, मिन जिक्री, अल्लाह ने फरमाया मेरे जिक्र से शक में है। बल्कि लम्मा, अभी तक नहीं, लन और माँ है। लन का मतलब है हरगिज, और माँ नहीं, अभी तक नहीं, यजूकु, उन्होंने चखा, अजाब, अजाब को। हम, क्या, वो पूछते थे, इन दहुम, इनके पास, खजाइनु रहमत रब्बे का, कहते थे क्या इनके पास तुम्हारे रब के खजाने हैं। अल्लाह, अल्लाह की जात तो अल अजीज, जबरदस्त है, वहाब, और बहुत ज्यादा अता फरमाने वाली है। हम, क्या, लहुम, इनके पास, इनके बुतों के पास, मुल्क, बादशाहत है आसमानों की और जमीन की और जो कुछ उसके दरमियान है। फल यरतखू, बस उनको चाहिए कि वो चढ़ जाएं, फिल असबाब, रस्सियों पर चढ़ जाएं। ठीक है, क्या इनके पास तुम्हारे रब की रहमत के खजाने हैं, और अल्लाह ताला के पास तो वाकई खजाने हैं, अल्लाह तो जबरदस्त भी है और बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला है। इनसे पूछिए, क्या इनके पास आसमानों और जमीन की बादशाहत है और जो कुछ उसके दरमियान है। और अगर इनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो बादशाहत है तो दिखाए ना अपनी बादशाहत को। फल यरतखू, बस इनको चाहिए कि ये चढ़ जाएं, फिल असबाब, रस्सियां तान कर, आसमान से रस्सियां ताने और उस पर चढ़ जाएं। जो तुम लश्कर, माँ हुनाले का, यहाँ पर, महजूमुन, हारे हुए हैं, मिनल ahzab, लश्करों में से। ठीक है, लश्करों में से बहुत से लश्कर यहाँ पर हलाक हुए में से हैं। कज़्ज़बत, जैसे पिछले लश्कर बहुत सारे ऐसे मकामात पर अंबिया आए, उनकी तालीमात को झुटलाया, इसी तरह ये भी झुटलाएंगे तो यही उन्हीं लश्करों की तरह तबाह हो जाएंगे। बता दिया गया, जुंदुल, लश्कर है, माँ होनाले का, जो यहाँ पर, होना कहते ना यहाँ पर, महजूमुन, हजम से ना, हारे हुए हैं, तबाह हुए हैं, मिनल अहज़ाब, लश्करों में से। बहुत सारे लश्कर हारे हुए हैं यहाँ पर लश्करों में से, जैसा कि हारे हुए लश्कर हैं, जैसा कि तबाह हुए किए हुए लश्कर हैं। कौन कौन से, कौम नूह के, कौम आद के, कौम फिरौन के। तो इसी तरह वो क्यों हारे थे, कज़्ज़बत, उन्होंने झुटलाया, क़ब्लहुम, इनसे पहले, कौम नूह ने, कौम आद ने, कौम फिरौन ने, जुल औताद, जो मीकों वाले थे, वह समूद, और समूद ने भी, और कौम लूत ने भी, और असहाबे ऐका ने भी। उलाई का, यही थे, आजाब, लश्कर, ये बड़े बड़े लश्कर थे अपने जमाने में।
इन नहीं, कुल्लुन हर एक ने इल्ला मगर कज़्ज़बा झुठलाया था, रुसुला पैगंबरों को झुठलाया था। फहक्का बस साबित हो गया, इक़ाब मेरी सज़ा साबित हो गई। ठीक है? यहाँ तक इसको कर लें। इस सूरत की इब्तिदाई आयात का पस मंज़र ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब मुसलमान ना होने के बावजूद आपकी पूरी निगहदाश्त कर रहे थे। जब वो एक बीमारी में मुब्तला हुए कि कुरैश के बड़े-बड़े सरदारों ने एक मजलिस मुशावरत की, जिसमें अबू जहल, आस बिन वाइल, असवद बिन मुतल्लिब, असवद बिन अब्द यगूस और दूसरे रोसा शरीक थे। मशवरा ये हुआ अबू तालिब बीमार है, अगर वो इस दुनिया से गुजर गए और उसके बाद हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नए दीन से बाज रखने के लिए कोई सख्त इक़दाम किया तो अरब के लोग हमें ये ताना देंगे जब तक अबू तालिब जिंदा रहे। उस वक्त तो ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सके, और जब इनका इंतकाल हो गया तो इन्होंने इनको हदफ बना लिया। लिहाजा हमें चाहिए हम अबू तालिब की जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला खत्म कर दे, ताकि वो हमारे माबूदों को बुरा कहना छोड़ दे। चुनाचा ये लोग अबू तालिब के पास पहुंचे और जाकर उनसे कहा, तुम्हारा भतीजा हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, इंसाफ से काम लेकर उनसे कहिए जिस खुदा की चाहे इबादत करे, लेकिन हमारे बाबूतों को कुछ ना कहे। चुनाचा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उनके बुतों को इसके सिवा कुछ ना कहते थे कि बेहिस और बेजान है, ना तुम्हारे खालिक है, ना राजिक है, ना नफा नुकसान पर कोई उनका इख्तियार है। अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजलिस में बुलाया और आपसे कहा, भतीजे ये लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, तुम इनके बाद माबूदों को बुरा कहते हो, इन्हें अपने इन्हें इनके मजहब पर छोड़ दो और तुम अपने खुदा की इबादत करते रहो। इस पर कुरैश के लोग बोलते रहे। बालाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा जान क्या मैं इन्हें इस चीज की दावत ना दूं जो इससे बेहतर है? अबू तालिब ने कहा, वो क्या चीज है? आपने फरमाया, मैं इनसे एक ऐसा कलमा कहलवाना चाहता हूँ जिसके जरिए साला अरब इनके सामने सर झुका देगा और पूरे अजम के ये मालिक हो जाएंगे। इस पर अबू जहल ने बताओ वो कलमा क्या है? तुम्हारे बाप की कसम हम उस कलमे को एक मर्तबा नहीं बल्कि 10 मर्तबा कहने को तैयार हैं। उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। इस पर तमाम लोग कपड़े झाड़ कर उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हम सारे माबूदों को छोड़कर सिर्फ एक माबूद को इख्तियार करें। वन तलखा और चले गए सरदार, मैंने आपको कहा था ना, मैंने उनमें से, और कहने लगे चलो और अपने अपने माबूदों पर जमे रहो। ये पूरा सारा किस्सा है। उलाइकल अहज़ाब, एक तफसीर तो ये है जुमला महज़ूबुन में का बयान जिन में गुरोहों की इस तरफ इशारा है। फवाह के अरबी में कई माना आते हैं। एक तो फवाह उस दरमियानी वक्फे को कहते हैं जिसमें एक मर्तबा दूध दोने के बाद दोबारा उसके थनों में दूध आ जाए। नीस इसके माना राहत और आराम के भी है। बहरहाल मतलब ये है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का, नहीं ये तो हमने आयत ही नहीं पढ़ी ये वाली तो। इंशाल्लाह कल इसको हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? चलो।